I just want to say something about this event. It's basically we will discuss about this test preparation for the competitive exams and its do's and don't and how to start yourself for these competitive exams. Then, after that, Dr. Gaurav can share more about details. Another thing I would like to share with you guys. Wacom India is sponsoring for this event, and thank you, Wacom India. We have Mr. Alok Sharma, marketing head India from Wacom India, and he would like to say something about Wacom, and then we can hand over the session to Dr. Gaurav, and you can continue, sir. Alok sir, you can share your screen actually, if you want. Yeah, thank you, Rajesh, and thank you, everyone. Uh, yeah, first of all, thanks to all youth team who are arranging this wonderful opportunity for me as a Wacom, where we can introduce Wacom. Let me share my screen just a minute. Sorry, Rajesh, I'm not friendly with this operating system. So can you help me out that how can So I? you just need to just please check yourself on the left side. There is a button called Start Sharing below that polls option. Just click on that, and you can share your screen. Yes, yes. Just a minute. Let me just check. Start sharing. Yeah. Yeah. Oh, it's visible now. Yeah, yeah. Uh, Okay. Yeah. So once again, thank you, Rajesh. Thank you, everyone, for this opportunity where I can introduce Wacom India. My name is bringing creativity and technology closer. So everyone knows that this is time of technology. It's a pandemic after this pandemic situations, but we observed that technology is so important for everyone who are involving in online educations. That's why we are introduce our product lineup in online educations. So here you can see that Wacom India is not a new company. We started in 1983 from Tokyo, and we are inventor of EMR technology, which is the electromagnet resonance. So with this technology, you can use a battery-free cordless digital pen, which is with along with the pressure sensitivity, which is a more actual pen. You can feel a actual pen and paper during online or any designing concept. If you are doing anything on system, you can use Wacom pen tablet. So these all are our technology partners. Actually, these all are brands who are using our technology. If you can see that Samsung, which is recently launched a new mobile along with the pen. So that pen also created by Wacom. And here you can see I'm also using ThinkPad Lenovo, and this pen also created by Wacom. So these kind of technologies, EMR technology actually, what we are selling to other brands. So these all are brands who are using our technology. Second, where you can find us. These are top institute who are using our technologies, our product as well. You can say that Delhi University, Vedantu, Bayus, UPS, these all are top class institute who are using our pen tablet for online educations. And here you can see our presence. We have a all over India presence, but four demo centers like New Delhi, Bangalore, Mumbai, and Hyderabad. These are our touch points where you can touch our product, you can see our products, and get some hands-on experience over there. So if I'll talk more, I need to talk more about remote learning because this is the concept which is adopted by all institutes after this pandemic situations. So how to use this product? You simply connect with a USB cable, and some of the product are using through the Bluetooth also.
So this is one of the product DTC 133, which is recently launched by Wacom India. It's a 13 inches display, which you can connect with the system and you can write anything on the computer screen. So on platform, so Teams, Zoom, and many more platforms which is using by Wacom. So you can connect Wacom display with these Teams and simply write anything, whatever you want. So device you need for home-based distance learning. This is simply connection. For example, you can connect this product with the Bluetooth connectivities also with the and it's compatible with Android, Mac, and Windows as well. After that, Wacom in virtual classroom, here's is some of the images which we taken from remote learning, that how works with Mac or PC, integrate with most of the popular software, easy to install drivers. So these are some of the USP which we are using for this product. So this is our product lineup, what we are selling in right now in Indian market. One by Wacom, Intuos Pro. These are pen tablet. These are pen tablet which we are using, which we are selling for pen tablet industries. And in case of display, because you know that in case of pen tablet, you need hand and eye coordination. First, you have to connect with the system, then you will draw on pen tablet, and it will reflect in your computer screen. But in case of display, whatever you want, you can directly write on computer screen. It will reflect directly on your screen. So there is not required hand and eye coordination in case of displays. So these all are products which we recommended for online educations. First one is Wacom One. Starting range is 4799 4790 7990. This is MRP what we are offering. But for the online education and students, we are offering some discount also for students. And this is our interest segment, and this is one product which we are offering for students, display segment, 14 inches display, and this is very budget friendly device. So pen tablet for educations, one by Wacom. There is some specifications. So I understand the time limitations. That's why I'll not go in detail. And you can visit to our website also. There is small video. I'll skip this video because voice is not there. So these all are pen accessories, software, and these are software compatibility, because lots of times I got questions from some of them that it will be compatible with Adobe, with the PPT or whiteboard. So I will make sure that Wacom is compatible more than 3,000 software. So don't worry about that. That it's highly appreciated by Education Institute, and everyone is using our product. So our presence B2B, JM, online, Amazon, Flipkart, you can buy it from any platforms, and retail segment also, all in all metro cities. In case of toll-free numbers, we have a customer support teams. You can connect us with the toll-free number. So thanks for the increasing feedback. So you can connect us through the Facebook and Instagram. And yes, you can follow us on YouTube also. We have a Wacom India channel also. You can go there. So why Wacom India? So this is some of the unique USP. Only Japanese brand in pen tablet industries. We can say that so many brands who are coming from the China's, and there is no quality assurance. So that's why I would like to. I'm very proudly say that we are only Japanese brand in this industries, only brand with a technical sound representative in almost all major regions in India, support for the local levels. We have regional presence also. Wacom is the innovator of digital pen technology and is available since 1983. You can say that we are very experienced, so very old company. So we are not new in this industry. So that's why Wacom is the only brand for most trustable global brand. So we have right now more than 1 lakh customers in India. You can connect us with the Facebook, Instagram, and YouTube channel as well. So this is a small presentation. Actually, I skipped some of the slides just because of the time limitations, so that you will make sure that why Wacom and what is the Wacom USP you can understand. And for more detail, you can go to our websites, and every time we are also open for any kind of questions. And in the end of this Q&A session, you can ask anything which is related to Wacom.
So I think my time is over. So now I would request to Gaurav that please start your presentations, whatever you want. Thank you. Once again, thank you, Rajesh, and thank you, youth team. Thank you. Um, Thank you, Alok sir, for your sharing about the Wacom and your activities actually. Um, Guys, please visit wacom.com for more details, and you can ask, mail us and chat here also for Yes. any further queries. So, Gaurav sir, we hand over to you right now, and you can continue further, and we'll be here for any technical support and all. Um, so let's start the session. Thank you, Rajesh. First of all, I'd like to thank you, Rajesh and Mr. Alok Sharma, for giving this opportunity to connect with the students. Uh, because very rarely I connect with students on this basis, on a video basis. Uh, I think I can see that there are a lot of students, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, and from their surnames I can make out that most of them are from the Hindi belt. तो मुझे लगता है मैं हिंदी में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा है, मैं ज्यादा अच्छे से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा. Is it fine? Yeah, I guess it's absolutely fine. Even we can you can mix the language also if required. Yes, So yes, sure. So today I'll talk about some of our qualities which can really propel us in this competitive world. आप में से ज्यादातर लोग जो मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं. आई एम अज्यूमिंग आप स्टूडेंट्स हो बिकॉज आई एम अ टीचर एंड दैट इज व्हाई इफ अगर आप मुझे जानते हैं तो डेफिनेटली आप स्टूडेंट्स होंगे. सो आई एम अज्यूमिंग दिस एंड देयरफॉर आई यू वेरी वेल नो कि आज का जो समय है वो कितना ज्यादा कंपटीशन का समय है, कितना ज्यादा प्रतिस्पर्धा है आजकल. तो ऐसे में मैं आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा जो आप अपने अंदर ला सकते हैं एंड यू डेफिनेट हैव अ वेरी गुड लाइफ. तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ. देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको अपने अंदर लानी है कि आप अपना ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट. क्योंकि अगर आप हमेशा एक उस मोड में रहेंगे कि आप हमेशा यू विल बी ऑन योर टोज ऑलवेज, आपके हमेशा एक दबाव में रहेंगे. आप ये सोचिए कि जो भी नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हैं वो परमानेंट है, वो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहनी चाहिए, राइट. जब आपकी ये एक सोच होगी तो फिर एग्जाम आपको बहुत छोटी चीज लगेगी, राइट. और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एग्जाम देते हैं लाइफ में. आप नॉलेज सीकर बनिए, क्यूरियोसिटी, एक सीखने की चाह अपने अंदर रखिए. मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ. अभी आलोक शर्मा जी का उद्बोधन था, जो आलोक शर्मा जी की स्पीच थी. वैकॉम के प्रोडक्ट्स मैंने भी यूज किए हैं कम से कम 3 से 4 साल. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आई यूज वैकॉम एंड मैं हमेशा वंडर करता था कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम लिखते हैं और वो हमारी स्क्रीन पर आ जाता है. जैसे अभी ये मैं लिख रहा हूँ अगर, और मेरे आसपास एक वैकॉम का पेन भी होगा. Let me find out. Yeah, this is the Wacom pen. So I'm giving you one of the example. अब अगर मैं इसे लिखूंगा तो वो कैसी टेक्नोलॉजी है कि जो स्क्रीन है इससे उससे Wacom टैबलेट से स्क्रीन पर आ जाती है. और अभी मुझे इनकी स्पीच से पता चला कि इट इज EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्नोलॉजी. तो ये मैंने सीखा, राइट. आई ऑलवेज हैव दिस क्यूरियोसिटी टू लर्न. और मैं किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ. आई हैव अ वेरी गुड करियर ऑलरेडी, बट आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स. तो इनकी एक जो 5 मिनट की स्पीच थी उसी से मैंने कुछ सीख लिया, राइट. कि जैसे एक आजकल ऐसे मोबाइल फोन आ रहे हैं जिनके साथ एक पेन आता है, राइट. तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि वो जो पेन है वो स्क्रीन पे कैसे लिखेगा, राइट. तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? EMR टेक्नोलॉजी. कल मैं इसको बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ कि मुझे EMR टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्नोलॉजी. सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम अपनी जो क्यूरियोसिटी है उससे बहुत आगे निकल सकते हैं. हमारे अंदर एक सीखने की चाह होगी. हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे अपने ऊपर प्रेशर डाल के कि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें हमें अपना दायरा छोटा नहीं रखना है. हमें तो इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं. जब आपका ये एटीट्यूड होगा तो मुझे लगता है आप नॉलेज बहुत बड़े लेवल पे एक्वायर कर लेंगे और एग्जाम वगैरह तो बहुत फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह निकल जाएंगे. तो ये पहली चीज है जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं. दूसरी चीज है, आजकल देखिए आप सब लोग टैलेंटेड हैं. कभी ये मत सोचिए कि आप किसी से कम हैं. आप सारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं. और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आपको लैक ऑफ टैलेंट की वजह से हार या विफलता का सामना नहीं करना पड़ रहा आपको. आप डेविएटेड बहुत ज्यादा हैं. इतनी डेविएशंस हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं
सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, व्यूज़ हैं, वर्ल्ड व्यूज़ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, क्या-क्या नहीं है आपके जीवन में। तो आप इसको एक इमेजिन करिए कि जैसे एक चीज़ होती है, पावर बैंक बोलते हैं। पावर बैंक आप समझते हैं? पावर बैंक क्या होता है? सो पावर बैंक में हम अगर एक चीज़ डालेंगे तो पूरी पावर उसे मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पावर बैंक है, उसमें 6 स्लॉट्स हैं, 6 यूएसबी हैं और वो 6 यूएसबी से मैंने सारे उनमें स्लॉट्स डाल दिए। मैंने 6 मोबाइल लगा दिए, तो क्या होगा? पावर बैंक जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि एनर्जी ड्रेन होगी, 6 जगह ड्रेन होगी, राइट? यही आज हमारी पोज़ीशन है। हम पावर बैंक हैं। अच्छा, हमें पावर मिलती कहाँ से? 2 चीज़ें होती हैं, एक इनपुट यानी हमारी बॉडी में एनर्जी आ रही है और एक आउटपुट यानी एक हमारी बॉडी से एनर्जी जा रही है, राइट? अब होता क्या है, हम एनर्जी लेने वाली चीज़ें तो कर रहे हैं कम। हम आजकल एक नॉर्मल स्टूडेंट है अगर, तो वो एनर्जी लेने वाली चीज़ क्या कर रहा है? लेने वाली चीज़ सिर्फ़ भोजन, खाना जिससे एनर्जी मिल रही है। उसके अलावा क्या है? क्या वो मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है? नहीं करता। क्या वो शांति से बैठता है? नहीं। क्या वो एक्सरसाइज़ करता है? शायद नहीं। कितने लोग ऐसे ऐसे हैं जो एक्सरसाइज़ करते हैं रोज़, व्यायाम करते हैं रोज़? बहुत ही कम, राइट? यानी एनर्जी लेने वाली चीज़ क्या है? भोजन। यानी एक पावर बैंक है हमारे अंदर, उसमें एनर्जी आ गई, हमने खाना खा लिया। अब देखते हैं ड्रेनिंग वाली चीज़ें कौन-कौन सी हैं, जिनसे एनर्जी निकलती है। एक सोशल मीडिया है, एक रिलेटिव्स है, जैसे पावर बैंक है, राइट? तो उसमें हमने हमारे 6 या 7 जो स्लॉट हैं, वो सारे एक्टिवेट कर रखे हैं और हम बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाते हैं। वो एनर्जी जो सिर्फ़ एक जगह जानी चाहिए थी, वो है नॉलेज एक्वायर करने में, पढ़ने में, हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाने में, वो हर जगह ड्रेन हो रही है, 6-7 स्लॉट से निकल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? पावर बैंक की एनर्जी बचानी है, तो सारे जो यूएसबी स्लॉट हैं, हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए। जिससे सारी एनर्जी एक ही स्लॉट में जाए। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी हमें क्या करना है कि जो भी हमारी एनर्जी है उसको रिटेन करने के लिए हमें सारे स्लॉट्स बंद कर देने हैं। जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा डे 1 में आप कर दो ये सारी चीज़ें, धीरे-धीरे कम से कम इस चीज़ की समझ तो हो कि एनर्जी जा कहाँ रही है। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? अभी देखो दिन के सवा 4 बज रहे हैं। मैं 5-6 लेक्चर तो सुबह से रिकॉर्ड कर चुका हूँ। हमारा एक कंपनी है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, उसमें हम इतने सारे लोगों को सँभालते हैं, वो भी करते हैं। अब मैं ये आपके साथ हूँ अगले 45 मिनट, उसके बाद मेरे फिर कुछ और लेक्चर हैं, फिर एक हमारे फैकल्टी हैं जो मिलने आ रहे हैं, उनसे मेरी मीटिंग है फिर तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी कहीं से नहीं आती, ये बस मैं जो वो 6 स्लॉट हैं बाकी के उनको बंद करके रखता हूँ। मैं उतना ज़्यादा अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं होने देता, तो वो बच जाती है। खाना मैं भी उतना ही खाता हूँ जितना आप खाते हैं, शायद आपसे कम ही खाता हूँ। लेकिन एनर्जी मैं बचा लेता हूँ। तो हमें अपनी एनर्जी बचानी है, ये मेरे को लगता है दूसरी बहुत बड़ी क्वालिटी है। तीसरी क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसी इसी से रिलेटेड है वो सेकंड की एनर्जी बचाएँ कैसे, डिस्ट्रैक्शन कैसे जो है आपको खराब करती हैं। कई बार हमें लगता है कि बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, तो वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब आपके सामने किताब खुली हुई है, ठीक है? जैसे मेरे सामने मेरा आईपैड खुला हुआ है जिसपे मैं नोट्स बनाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए हुए हैं। सो मुझे ये पढ़ना है, राइट? तो मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया अपना आईपैड, लेकिन ध्यान मेरा कहीं और है। मैं कुछ और सोचे जा रहा हूँ। बस सामने तो बस किताब है, एक ही लाइन को 20 बार पढ़े जा रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता होगा आपके साथ भी। आप पढ़ने बैठते हैं, ध्यान आपका कहीं और है और आप वो उसी चीज़ को एक ही लाइन को 20-25 बार पढ़ते रहते हैं। तो मैं आईपैड पे भी यही कर रहा हूँ इस वक़्त, राइट? लेकिन मेरा पूरी कंसंट्रेशन जब मैं पढ़ूँगा तो इस पे होगी। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है जब आपकी पूरी एनर्जी एक ही चीज़ पे लगी होगी, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आपको चलो एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताता हूँ। हमारे एक डॉक्टर हैं यहाँ पे मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट हरियाणा और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि दिल्ली जितना ही डेवलप्ड है और दिल्ली में ही आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। वैसे बाउंड्री जो है डिस्ट्रिक्ट है वो हरियाणा में आता है और गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। सो मैंने एक डॉक्टर को ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि वो जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ हमेशा पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है। हमेशा आप सुबह जाओ 6 बजे, शाम को जाओ 6 बजे, हमेशा लाइन लगी रहती है पेशेंट की। डॉक्टर 9 बजे आते हैं, 6 बजे लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है, सुबह। और वो जो डॉक्टर हैं वो एक ऐसी लोकेशन पे हैं, जहाँ उनके चारों तरफ बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं। इधर कोलंबिया एशिया, इधर फोर्टिस, पीछे आर्टेमिस, सामने कोई और मतलब बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स। लेकिन वो जो डॉक्टर हैं, उनके लाइन नहीं टूटती है और वो अकेले एक छोटे से क्लिनिक में वो चला रहे हैं अपना क्लिनिक, राइट? तो एक दिन पूछा उनसे किसी ने कि आप ये कॉम्पिटिशन इतना बड़ा है, आप इससे प्रभावित नहीं होते? आपके चारों तरफ इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल मतलब बड़े-बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल जिन्हें बोलते हैं। आप कभी फोर्टिस में गए हों या आर्टेमिस में गए हों, मेदांता यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गुरुग्राम में।
लेकिन उन डॉक्टर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनसे जब पूछा कि आप क्या कंपटीशन से प्रभावित नहीं होते? क्या आपके पेशेंट ये हॉस्पिटल नहीं छीन लेते? क्या? बोले देखो मुझे नहीं पता क्या कंपटीशन है, क्या नहीं। मेरा ध्यान बस एक चीज़ पे रहता है कि जो पेशेंट मेरे सामने आके बैठ रहा है, मैं उसको बेस्ट से बेस्ट दूँ, बेस्ट से बेस्ट दवाई दूँ, बेस्ट से बेस्ट उस पे ध्यान दूँ। अगर उस पेशेंट पे आधा घंटा भी मुझे स्पेंड करना है, तो मैं करूँ। मैं इस जल्दबाजी में नहीं रहता कि मैं 5 मिनट में फारिग कर दूँगा इसको, तो मैं ज़्यादा पेशेंट देख लूँगा, ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। मैं इस पेशेंट पे अपना पूरा टाइम देता हूँ, पूरी केस हिस्ट्री लेता हूँ, 25-30 मिनट लगाता हूँ, पूरा ये सैटिस्फाइड होता है, जाता है, अपने आप 50 लोगों को मेरे गुणगान गाता है और मेरे पास और पेशेंट्स आते हैं और कोई भी कॉम्पिटिटर हो, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, वो मुझे टच भी नहीं कर पा रहा है, मेरा बिज़नेस प्रभाव करना तो दूर की बात। ये इससे एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारा ध्यान हर वक़्त एक भय, एक एक फ़ियर हमारे अंदर रहता है कि कॉम्पिटिशन बहुत है। जैसे पता नहीं कोई हमारा निवाला हमसे छीन ले जाएगा। जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं और हमारे हाथ से कोई रोटी खींच ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिशन हमें तभी प्रभावित करेगा जब हम कॉम्पिटिशन को अपने दिमाग पे ओवर पावर करने देंगे। अगर नहीं तो कॉम्पिटिशन तो कॉम इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ, कॉम्पिटिशन एक अच्छी चीज़ है, कॉम्पिटिशन मेक्स एवरीवन बेटर। अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो आपके पास इम्प्रूव करने के लिए क्या एक इंसेंटिव क्या है, राइट? आज भारत में 12 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 11 लोग क्रिकेट खेलते हैं 140 करोड़ में से। हर कोई एक दूसरे से बेहतर बनना चाहता है, तभी तो सचिन और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी आते हैं। अगर एक एवरेज खिलाड़ी टीम में चला जाता तो फिर कॉम्पिटिशन ही नहीं होता, तो कैसे अच्छी क्रिकेट मिलती? कॉम्पिटिशन से कभी डरो मत। कॉम्पिटिशन आपको आपका बेस्ट वर्ज़न एक्सप्लोर करने पे मजबूर करता है। कॉम्पिटिशन सबको बेटर बनाता है। कॉम्पिटिशन मेक्स एवरीवन बेटर। तो कॉम्पिटिशन से डरना नहीं चाहिए, अपने उस पे फ़ोकस करना चाहिए। अब आपने आपके सामने बुक खुली है, आपने एक चैप्टर पढ़ना है, तो उस चैप्टर पे पूरी एनर्जी दे दो। ठीक उसी तरह जिस तरह वो डॉक्टर अपने पेशेंट पे आधा घंटा लगा रहा है, आप डॉक्टर हो और आपका जो वो पेज है खुला हुआ, वो सामने पेशेंट है। उस पे पूरी एनर्जी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितना कॉम्पिटिशन है, आप अपनी मंजिल डेफिनिटली पालोगे। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आजकल मिसिंग है। आज लोग इतने टैलेंटेड है मैं देखता हूँ, मतलब आज आप सोचिए एक 6th क्लास का, 5th क्लास का बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, 10th क्लास का बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, राइट? आज इतनी चीज़ें मौजूद हैं, इतने रिसोर्सेज़ हैं। जब मैं पढ़ता था, जब मैं नीट एग्ज़ाम की तैयारी करता था 2005 में, यूट्यूब था ही नहीं, इंडिया में यूट्यूब नहीं था। मैंने सुना नहीं था, एटलीस्ट हो सकता है हो, मैं टेक्निकल उनमें नहीं जाऊँगा कि किस साल वो लॉन्च हुआ और वो सब। जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था 2012 में, यूट्यूब नहीं था। यूट्यूब था मतलब उसपे एजुकेशन चैनल नहीं थे, 2-3 चैनल होते थे। आज तो आपके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं, इतनी आपके पास आप मतलब इतना एक कहते हैं ना ओवरफ्लो, मतलब इतने रिसोर्सेज़ आपके पास हैं, तो ये एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ है, राइट? नेगेटिव भी है उसमें कि ओवरफ्लो है तो उस वज़ह से कहीं न कहीं आप ओवरवेल्म फ़ील करते हैं। आपको लगता है कि आप उस एक जाल में फँस गए हैं मकड़ी की तरह, इतना इतना कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन बड़ी बात ये है कि रिसोर्सेज़ का ज़्यादा होना अच्छा है, बजाए रिसोर्सेज़ का बिल्कुल ना होना। क्योंकि रिसोर्सेज़ अगर नहीं होते, तो आप कुछ कर नहीं पाते। रिसोर्सेज़ आज हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप को लिमिट करना है। एक डॉक्टर एक साथ अगर 5 पेशेंट देखेगा, नहीं देख सकता। देखेगा तो फिर वो क्वालिटी नहीं आएगी। जल्दबाज़ी अपने दिमाग से निकालनी होगी। आपको धीरज रखना होगा, काम पर्सन बनना है आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप शांत दिमाग के रहेंगे, काम रहेंगे, तो आप आसानी से विचलित नहीं होंगे, राइट? हो सके कभी ना कभी कोई बुक्स पढ़िए, अपने ऊपर अपने ऊपर काम करिए। मैंने भी एक बुक लिखी है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, ऑलरेडी 20,000 बच्चे उसे खरीद चुके हैं, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेल्फ हेल्प के ऊपर एक बुक लिखी थी मैंने, सफलता की राह। और ये फ्री में भी अवेलेबल है वैसे, ऐसा नहीं है कि आपको पे करके खरीदनी है, बहुत आराम से आपको मिल जाएगी, आप ढूँढेंगे तो। तो सेल्फ हेल्प आप पढ़िए, कुछ ना कुछ सीखेंगे आप उससे। एक बार एक गीता का श्लोक मैंने पढ़ा था, यम ही न वयथन्ते यते पुरुषं पुरुषर्षभ सम सुखम दुःखम धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते, राइट? अब ये इसका क्या मतलब है? सम सुखम दुःखम धीरम मतलब सुख में ज़्यादा पागल नहीं हो जाना और दुःख में ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना। आप ऐसे बनिए, काम, शांत, बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ विचलित ना करे, राइट? जैसे पानी शांत रहता है, ज ज पानी कहाँ पे शांत रहता है? पानी क्या बीच पे शांत रहता है? नहीं, बीच पे तो तरंगे आती हैं। पानी वहाँ पे उथला होता है, शैलो होता है। पानी तो वहाँ शांत रहता है जहाँ पे वो गहरा होता है। तो उसी तरह से गहरे बनिए और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। चौथी क्वालिटी जो मुझे लगता है मैंने देखी कि आप अपने टीचर पे विश्वास रखिए, बहुत ज़्यादा टीचर मत बनाइए, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए।
आप अपना दायरा लिमिटेड रखिए हर चीज में, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स में भी। एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर पकड़ो, पहले अपना पूरा रिसर्च कर लो, ठीक है, कि मेरे हिसाब से कौन सा टीचर मुझे अच्छा लगता है। अलग अलग टीचर से पढ़ो, कोशिश करो, उनके वीडियोस देखो, बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, फ्री अवेलेबल है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। और उसमें फिर चूज कर लो कि ठीक है, मेरी इस टीचर से सेटिंग अच्छी बैठती है, इसका मुझे समझ में आता है, अब मैं इसी से ही पढ़ूंगा, मैं किसी और से नहीं पढ़ूंगा। राइट। एक अच्छी कहानी आपको सुनाता हूँ कि किस तरह का एक रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का। एक बार एक राजा था जिसका नाम था महमूद। तो उनका एक सर्वेंट था जिसका नाम था अय्याज। तो एक बार दरबार लगा हुआ था, दरबार में राजा ने एक पत्थर दिखाया। एक बहुत कीमती पत्थर था, जो कहते हैं ना, हीरा, हीरे से भी कीमती पत्थर था। और अपने दरबारियों को बुलाया एक एक करके। तो उसने कहा सबको कि एक एक दरबारी को कहा, इस पत्थर को अपने हाथ में लो। उसने लिया हाथ में। उसके बाद राजा ने कहा, एक काम करो, इस पत्थर के बारे में मुझे एक दो लाइनें बताओ। तो राजा का जो मंत्री था उसने कहा कि ये जो पत्थर है ये इतना खूबसूरत है कि इसकी व्याख्या की नहीं जा सकती। ये तो हीरों से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और ऐसा पत्थर, कीमती पत्थर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। उसके बाद राजा कहता है, एक काम करो, तोड़ दो इसे। तो मंत्री कहता है, राजा साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप, इतना कीमती पत्थर कोई कैसे तोड़ सकता है, क्षमा करें। तो राजा ने उससे पत्थर वापस ले लिया और उसको कहा, ठीक है, अब आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। उसके बाद ऐसे कर करके एक एक दरबारी आते गए और सबसे कहा कि पहले इसके बारे में तारीफ करो। तो बहुत तारीफ लोग करने लगे कि इस जैसा तो हमने पत्थर देखा नहीं, और अलग अलग कविताएं पढ़ के उसकी तारीफ करने लगे। और राजा ने सबको कहा उसको तोड़ दो, किसी ने भी नहीं तोड़ा। उसके बाद आखिर में राजा का जो एक नौकर था बहुत वफादार, अय्याज। तो राजा महमूद ने अय्याज को बुलाया, उसको कहा इस पत्थर की देख के तारीफ करो। तो उस पत्थर की उसने बहुत तारीफ करी और कहा कि ये तो नगीना है, ये तो ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, इसकी तो व्याख्या नहीं की जा सकती। राजा ने कहा, एक काम करो, इसे तोड़ दो। तो अय्याज ने उस पत्थर को लिया और तुरंत जमीन में देकर मारा, और वो पत्थर वहीं पे टूट गया। तो राजा बहुत खुश हुए। राजा बोले, ये मेरा असली शिष्य है, क्योंकि इसके लिए पत्थर कीमती नहीं है, इसके लिए मेरा शब्द कीमती है। मैंने कहा तोड़ो, तो इसके लिए मेरा शब्द कीमती है। तो एक एक स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए, एक टीचर ने जो कह दिया बस मेरे को वही करना है। एक 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 निष्ठा होनी चाहिए। एक 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 मैं ये नहीं कह रहा टीचर किसी को भी बना लो, बिल्कुल नहीं। टीचर पे बनाने से पहले रिसर्च करो पूरा कि कौन हमारे लायक है, किसका हमें समझ में आ रहा है। लेकिन जब एक बार उसको अपना लिया, उसके बाद भटको मत। भटको मत। भटकना बहुत ज्यादा, ये इनफैक्ट एक अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में भी कही जाती है ये चीज। मैं आपको, एक किसी ने मुझे एक फोटो भेजी थी, और मैं आपको बताता हूँ उस पे क्या लिखा था। इस पे लिखा था, एक ही चौखट पे सर झुके, एक ही चौखट पे सर झुके तो सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वो लोग जिनके कई खुदा होते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको, आप निष्ठा रखो। आपने जो अपने लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करी है उसी पे स्टिक करो। बाद में अगर आप बार बार बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी और वो सब करोगे तो भटक जाओगे। जैसे आपने मान लीजिए किसी का इंटरव्यू देखा कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने किसी का इंटरव्यू देखा कि इसकी तैयारी कैसे करें। आपने वो देखा, आपको अच्छा लगा, आप सेटिस्फाइड हो गए, आपने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली। अब आप किसी दूसरे का देखेंगे, फिर वो दूसरा कुछ और कहेगा, उसके हिसाब से आप फिर आप क्या करेंगे। आपका बस ध्यान इसी में जाएगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं स्ट्रेटेजी के ही वीडियो देखता रहूं, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करेंगे, आप उस पर काम नहीं करेंगे। आप उसी में भटके रह जाएंगे और आपको लगेगा आपकी प्रिपरेशन आगे जा रही है, लेकिन वो कहीं नहीं जा रही। सिर्फ अ, सिर्फ मान लीजिए मैं बोलता हूँ मीठा, 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 तो उसमें मुँह में मीठा नहीं आ जाता। मुझे एक्चुअल में मिठाई खानी पड़ती है, चबानी पड़ती है, तब मेरी जीभ पे मीठा स्वाद आता है। तो ये वो वाली बात है, खाने का मज़ा जो है खाने में ही रहता है, और बोलने का मज़ा बोलने में रहता है। बातें करने से सिर्फ बातें ही वापस मिलेंगी, और काम करने से फल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने आया हूँ। 1-2 चीज़ें मैंने लिखी थी आपको बताने के लिए। ये एक्चुअली मुझे एक मेरे दोस्त ने बताई थी, एक उनकी लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। राजेश, अभी समय है हमारे पास, राइट? Yes, sir. We have sufficient time. राइट, तो एक छोटी सी चीज आपको मैं बताता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। मेरे एक मित्र हैं, एक बहुत सीनियर आईपीएस अफसर हैं। आपने उनके वीडियोस हमारे स्टडी आईक्यू चैनल पर देखे होंगे। आईपीएस जो हैं, राजन, आईपीएस राजन नाम है उनका, राजन सिंह। तो उन्होंने एक बार मुझसे, हम बैठ के कहीं चाय पी रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, गौरव एक बात बताओ कि अ, सड़क पे दौड़ना ज़्यादा आसान है या पार्क में दौड़ना ज़्यादा आसान है?
तो मैंने कहा कि भाई पार्क में दौड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि पार्क पे हम नरम नरम जो घास होती है उस पे दौड़ते हैं, मुलायम घास होती है। और रोड पे तो फिर रोड तो बहुत कठोर होता है, उस पे दौड़ना मुश्किल है। रोड पे गाड़ियां आती रहती हैं, उसका खतरा भी रहता है। रोड पे पोल्यूशन भी होता है, कई बार दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कई बार जानवर वगैरह भी आ सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें जो है एलिमेंट ऑफ हार्डशिप रहता है, राइट। तो वो बोले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को, कुछ स्टूडेंट्स को कहा कि तुम जो है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रोज दौड़ा करो। 10 मान लेते हैं, 10 किलोमीटर रोज दौड़ा करो। तो 10 स्टूडेंट्स थे, 5 को कहा कि तुम पार्क में दौड़ोगे और 5 को कहा कि तुम सड़क पे दौड़ोगे, राइट। अब ये हम सब मानते हैं कि पार्क में दौड़ना ज्यादा आसान है, राइट। पार्क में दौड़ना आसान ज्यादा है, क्योंकि अच्छा, कई बार ये भी होता है कि पार्क में दौड़ने के लिए या वॉक करने के लिए एक अलग ट्रैक बना दिया जाता है, गोल। जरूरी नहीं है घास हो, लेकिन उस पे भी दौड़ना रिलेटिवली आसान है, सड़क के मुकाबले तो आसान है, राइट। तो पार्क में दौड़ना सड़क के मुकाबले ज्यादा आसान है। लेकिन ऐसा देखा गया कि 10-15 दिन के बाद जब उन स्टूडेंट्स का मेजर किया, हाथ पे जो लगा हुआ था उस पे मेजर हो जाता है। आजकल हाथ पे बैंड आते हैं, फिटनेस बैंड, जिन पे मेजर हो जाता है कि आपने कितना दौड़ा। तो ये देखा गया कि जो सड़क पे दौड़ने वाले थे वो अपना पूरा 10 किलोमीटर दौड़ लेते थे, लेकिन जो पार्क वाले थे वो कम दौड़ पाए, उनकी जो एवरेज थी वो कम आई। तो बाद में स्टडी की गई, साइकोलॉजिकल स्टडी, कि ऐसा क्यों हुआ। सड़क पे दौड़ने वाले 10 किलोमीटर रोज दौड़ गए, जबकि वो ज्यादा मुश्किल है, और पार्क वाले जो हैं वो नहीं दौड़ पा रहे उतना। वो जो हैं अंडर अचीवर हैं, वो उतना वो नहीं कर पा रहे। तो उसके पीछे रीजन ये था कि जो पार्क में दौड़ता है, आप इमेजिन करिए कि एक पार्क है, उसमें गोल, क्योंकि पार्क कोई 10 किलोमीटर लंबा तो हो नहीं सकता, तो पार्क छोटा होता है, लेकिन उसमें गोल एक आपको राउंड लेना होता है। अब इमेजिन करिए, जब आप एक पार्क का एक चक्कर लगाते हैं, यानी आपने आधा किलोमीटर दौड़ लिया, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पार्क का एक चक्कर आधा किलोमीटर का है, यानी 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको पार्क के 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे, राइट। 20 चक्कर। समस्या ये होती है, पार्क का जब हम एक चक्कर खत्म करके उसी पॉइंट पे वापस आते हैं, तो हमें अपने माइंड को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, एक चक्कर और लगाओ, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ एक अचीवमेंट का एहसास होता है। मैंने पार्क में एक चक्कर लगाया, मैं वहां पे आ गया। अब मेरे को अपने मन को दोबारा बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को, भाई एक चक्कर अब और लगा, ठीक है। ऐसे करते करते 20 आते आते लोग 15 पे रुक जाते हैं, 12 पे रुक जाते हैं, 13 पे रुक जाते हैं, और अपना जो लक्ष्य है वो अचीव नहीं कर पाते। मान लो आपने पार्क में एक टारगेट रखा है कि भाई मुझे आज 1 घंटा दौड़ना है, तो आप देखोगे आप 45 मिनट या 50 मिनट में बाहर आ जाओगे। ऐसा क्यों होता है कि जो आखिरी के 15 मिनट है वो इतने टफ लगते हैं? आखिरी के 15 मिनट हम पूरी शुरू में तो ठीक है, 15 मिनट शुरू के ठीक है, फिर ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य के नजदीक आते हैं, हम ढीले पड़ने लगते हैं। इसके लिए एक अंग्रेजी में वर्ड होता है, कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंट हो जाना, कॉम्प्लेसेंट मतलब सेटिस्फाइड हो जाना, इजिली सेटिस्फाइड हो जाना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी। और हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसकी एक बहुत बड़ी बुराई कह लो, क्वालिटी कह लो, वो है कॉम्प्लेसेंसी। हम बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ करके हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और हम फिर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो सड़क पे दौड़ रहा है, अब आते हैं दूसरी चीज पे। तो पार्क वालों का रीजन आपको समझ में आया कि वो अपना लक्ष्य पूरा क्यों नहीं कर पाते थे रोज। वो अपने आप को हर बार दौड़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते थे। लेकिन जो सड़क पे दौड़ रहा है, कुछ नहीं है, सीधा जाना है, सीधा आना है, कुछ उसमें वो है ही नहीं, कुछ बैरियर ही नहीं है दिमाग में। यानी कि हमारी कठिनाइयां हमें नहीं रोकती, हमारा दिमाग हमें रोकता है, राइट। सड़क पे दौड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, उसके बावजूद हर कोई वो कर पा रहा था, अपना लक्ष्य अचीव कर पा रहा था। पार्क में दौड़ना आसान है, फिर भी लोग अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब लक्ष्य आसान या मुश्किल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में बैरियर है या नहीं है, इससे फर्क पड़ता है। जैसे भगवान बुद्ध कहा करते थे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका सबसे शक्तिशाली दुश्मन भी आपका उतना बुरा नहीं कर सकता जितने आपके खुद के बेलगाम विचार। Not even your worst enemy can harm you as much as your unguarded thoughts, is what Swami Vivekananda or probably Lord Buddha said. And this is a learning for all of us. You know how we have to live our lives. We have to live our lives, not be governed by our mind, but we have to live our lives in a way where we are so much focused on our goal that everything else is secondary and everything else simply doesn't matter. Right? तो यही कुछ बस मुझे आपको चीजें बतानी थी आज इस वेबिनार में। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं मैं उनके आंसर करूं।
तो राजेश जी मुझे आप गाइड कर दीजिए कि ये जो इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इनके क्वेश्चंस किस तरह से लेने हैं। इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना हैंड रेज कर रहे हैं यहाँ पे। Yes, we can allow them to talk actually. If you तो if you आप think that. अपना हाथ रेज कर दीजिए और आपका हाथ रेज कैसे करना है आपको, यहाँ पे एक आपके एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको रेज हैंड। तो जिन लोगों ने हैंड रेज किया है मैं उनके पास जा रहा हूँ। आकाश दे, आकाश शर्मा, दीपेंद्र सिनवार और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं विवेक खुशवाहा से स्टार्ट करता हूँ। विवेक आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। So just let me allow him to talk first. Yeah, I guess he can speak now. Yeah, Vivek, you are on audio actually. So please raise your question. So Ji sir can answer your queries. हेलो and सर, all. नमस्ते। जी बताइए। सर ये इसमें कंसिस्टेंसी कैसे रखें या स्पीकिंग स्किल्स को कैसे सुधारें? ओके, तो 2 क्वेश्चन है आपके। पहला कंसिस्टेंट कैसे रहें और दूसरा ये है कि स्किल्स को कैसे सुधारें? यस सर। स्पीकिंग स्किल्स को, इंग्लिश सीखना मतलब इंग्लिश बोलना, राइट? जी सर, जी सर। राइट। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि पहले इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंग्लिश को उतना ही सम्मान दो जितना आपने हिंदी को दिया है, राइट? जैसे आप भाषा को भाषा रहने दो, राइट? आप ये तो मानते हो मुझे कि एक इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति भी पैट्रियोटिक हो सकता है। इसमें तो मैं कुछ वो नहीं कह रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई केरला का व्यक्ति है तो वो भी पैट्रियोटिक होगा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉर्थ ईस्ट का है, राइट? तो इंग्लिश को आप एक सेकेंडरी लैंग्वेज की नज़र से देखना छोड़ दो। इंग्लिश को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, अपनी प्राथमिकता बनाओ। आप जब न्यूज़ देखो तो इंग्लिश में देखो। देखो, एक बात याद रखो, आप किसी भाषा को अपने ब्रेन में डाउनलोड नहीं करते, आपको सीखना पड़ता है। और आप बचपन में याद करो, हिंदी भी आपको कोई एकदम से नहीं आ गई होगी, आपको हिंदी सीखने में भी टाइम लगा होगा, इसी तरह इंग्लिश सीखने में मुझे पर्सनली 6 से 7 साल लगे और इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। आज इतने साधन आ गए हैं, इतनी चीज़ें आ गई हैं, तो आप 2-3 साल में सीख पाओगे, लेकिन 2-3 साल तो लगेंगे। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कुछ ऐसे लोग वीडियोज़ बना देते हैं कि इंग्लिश सीखिए 1 घंटे में और इस तरह से काम नहीं चलता, ऐसे नहीं होता। अपने लिए समय रखिए, किसी भी भाषा को सीखने में समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है और इमर्सिव एक्सपीरियंस बोलते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस मतलब ये इंग्लिश में खो जाओ, बोलने की कोशिश करो। सबसे पहले जो हीन भावना है उसे हटा दो। किसी भी तरह की आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आपको डर नहीं लगना चाहिए कि मैं इंग्लिश बोलूँगा तो लोग हँसेंगे। जब मैं शुरू में बोलता था मुझ पे भी हँसते थे। कोई बात नहीं, सीखने का प्रोसेस है। जो हँस रहे हैं वो कभी नहीं सीख पाएँगे, आप एक दिन सीख जाएँगे। अब मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे, वो है कंसिस्टेंट कैसे रहें? देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि मेरे को रोज़ 6 घंटे पढ़ना है, दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो होती है वो एक एवरेज से होती है। एवरेज का मतलब ये है कि मेरी एवरेज 6 घंटे की आएगी। तो किसी दिन हो सकता है मैं 10 घंटे पढ़ लूँ, किसी दिन हो सकता है मैं 2 घंटे पढ़ लूँ। कई दिन नेचुरली ऐसा होता है हम बहुत एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, उसका कोई ख़ास कारण नहीं होता, बस कुछ दिन होते हैं जब हम बहुत नेचुरली एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन कई दिन ऐसे होते हैं जब हमारा मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। तो जिस दिन मन नहीं लगता, उस दिन आप कम पढ़ाई कर लो, उस दिन आप दूसरी चीज़ें एन्जॉय कर लो। हम कोई रोबोट नहीं है कि एक दिन उतना ही पढ़ेंगे, हमारे अंदर चाबी भर दी अब उतना ही चलेंगे। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा कोई लीनियर फ़ॉर्मूला नहीं है। तो जिस दिन पढ़ाई जिस दिन आपका मन नहीं लग रहा, उस दिन आप कम पढ़ो, उस दिन रिवाइज़ कर लो, कुछ नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रिवाइज़ करना आसान होता है, नया पढ़ना मुश्किल होता है। ऐसे करके आप कंसिस्टेंट हो सकते हो, आपकी जो एवरेज है, वो आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित कुमार। Smith, you can speak now. हाँ सर। हेलो सर, मुझे सर आरसी इम्प्रूव करना है। आरसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि मेंस में मैं अच्छा कर सकूं? अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं आप शायद? यस 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 सर, यस। राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है जब आपने कुछ पढ़ लिया, तो आप उसको कितनी जल्दी समझ पा रहे हैं और वो समझने की जो आपकी शक्ति है, वो धीरे-धीरे बढ़ती है। इंग्लिश अखबार पढ़ना सबसे अच्छा है। शुरू में आप ऐसे इंग्लिश अखबार पढ़िए जिनमें जो भाषा है वो कठिन कम होती है, यानी कि जो हिंदी होती है और बाद में द हिंदू या ट्रिब्यून जैसे अखबार पढ़िए जिनमें थोड़ी-सी डिफिकल्ट होती है। धीरे-धीरे होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत धीरे-धीरे डेवलप होती है क्योंकि इंग्लिश सीखनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है, अगर आप पहले किसी जैसे हिंदुस्तान अखबार है,
हिंदुस्तान अखबार वही ग्रुप छापता है जो हिंदुस्तान टाइम्स छापता है, हिंदी में हिंदुस्तान, इंग्लिश में। तो उसी न्यूज को पहले आप हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा न्यूज क्या है। फिर जब आप उसी न्यूज को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत उस पैसेज को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सेंट्रल थीम आपको पता होगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद फिर पैसेज का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, 15-20 दिन ये काम करिए। फिर क्या करिए, पहले हिंदी में पढ़ना छोड़ दीजिए, फिर पहले डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़िए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आज भी जो लोग इंग्लिश बोलना नहीं जानते, जब वो इंग्लिश का एक पैरा पढ़ते हैं तो उन्हें ये एक इंट्यूशन आ जाती है, एक समझ में आ जाता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं किस चीज के बारे में पढ़ रहा हूँ, इसमें दिया क्या है, उतना तो सबको समझ में आ जाता है। बस उस चीज को निखारना है, और निखारने के लिए वो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा मैं ईशा का। There's called Sumrit or something. Isha. I'm not able to see Isha actually. ईशा का नाम जो है हनी के बाद लिखा हुआ है, HII पे जाइए आप। Yeah, ठीक है, sure. मैंने पूछ लिया, मेरे पास। Yeah, sure. हेलो यस। सर, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था कि ये जो जर्नी है ये इतनी लंबी होती है कोई टेस्ट क्लियर करने की, तो सर इस जर्नी में अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स का हम पे से तो विश्वास ही उठ जाता है 1-2 साल के बाद कि ये तो कुछ कर लेंगे। तो सर इस जर्नी में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें हम? यस यस, देखो एक बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि स्प्रिंट तो हम मार लेते हैं, मैराथन कैसे करें, और दिक्कत ये है कि ये जो एग्जाम्स होते हैं ज्यादातर ये बहुत लंबे चलते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल। तो इतने लंबे समय तक कैसे मोटिवेट रखें? ये देखो, धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि जो स्प्रिंट का धावक होता है, जो 200 मीटर दौड़ने वाला है, उसको कहो कि 20 किलोमीटर दौड़ना है अब, तो वो नहीं दौड़ पाएगा। मैराथन वाला तो मैराथन ही दौड़ सकता है। तो ये सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अपने माँ-बाप को पहले ही बता दो ये चीज़ कि देखो, हमारी गलती नहीं है, एग्ज़ाम आजकल लंबे ही चलते हैं, बहुत सारे बीच में बैरियर आते हैं उसमें, खास तौर पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, और उसमें 3 से 4 साल का समय लगता है। ऑब्वियसली आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और सीट है कुछ 100-200, तो ऑब्वियसली 99% बच्चे उसको नहीं कर पाएँगे। तो उसमें आपको थोड़ा समय देना ही होगा। जितनी सीट है उसी के हिसाब से फिर चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें आपकी कोई बहुत ज़्यादा कमी है, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन अब इतना ज़्यादा है, तो एक समय सीमा ज़्यादा रखनी होगी। पेरेंट्स को ये बताइए, वो समझेंगे इस चीज़ को कि ये उनका वाला समय नहीं है, ये आज का समय है जब हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, गला काट प्रतियोगिता चल रही है हर एग्ज़ाम में, तो ऑटोमैटिक। और दूसरी बात मोटिवेशन की, देखो मोटिवेशन तो आप में पहले ही होगा, आई एम श्योर आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हैं, आप कोई हाउसवाइफ बनने का प्लान तो आप रखती नहीं है, तो मोटिवेट तो आप पहले से होंगी, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई मोटिवेशन की एक्स्ट्रा ज़रूरत है। बस उसको अप्लाई करिए, मोटिवेशन को अमल में लाइए। हमें सिर्फ़ मोटिवेटेड फ़ील नहीं करना, हमें अपने लक्ष्य की तरफ काम भी करना है। तो मेरे को लगता है मोटिवेटेड तो आप पहले ही होंगी। अगर आप हाउसवाइफ बनने की सोच नहीं सोचती, तो आप इसका मतलब मोटिवेटेड हैं ही ऑलरेडी। यस सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा अभी आर्यमन का, मैं इन्हें अलाउ कर रहा हूँ। राजेश? Sure, sir. Please. यस आर्यमन। यस। May I ask? Aryaman, please share your questions. हेलो सर, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें डिस्कस किया कि हमें अपने आप को लिमिट करना चाहिए। सर आजकल सर जैसे ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को जैसे कहीं एक सोर्स से हम लोग कोई कंटेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद सर जैसे कभी हम मॉक्स देते हैं या कोई क्विज देते हैं, अगर हमारे पास उस समय कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है, तो हम जैसे आप बोल रहे थे कि एक टीचर पे भरोसा रखो और इस टाइप से, तो हम अगर वो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सर जैसे कभी कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है, कोई हमारा फ्रेंड हमसे डिस्कस करते वक्त कुछ अलग टॉपिक पे सवाल पूछ लेता है, तो सर फिर हमको ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगने लगता है, इसलिए सर हम लोग दूसरे सोर्सेस की तरफ जाने लगते हैं, तो उससे कैसे बचें सर?
देखो, आपका फ्रेंड वो जो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेगा, लेकिन वो दूसरा कहीं फंसेगा, राइट? अल्टीमेटली आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा एग्जाम में 50 में से 50 स्कोर करना है। आप देखेंगे कोई भी एग्जाम होता है, मान लीजिए 200 नंबर का है, तो कट ऑफ कितना जाता है? 120, 130, 140, 150। आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चन होते हैं कि आप छोड़ भी सकते हैं। प्रॉब्लम ये होगी कि लेट्स से कि अब मैं करंट अफेयर्स का टीचर हूं, तो मैं आपको करंट अफेयर्स की बात बताता हूं। 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 42 कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो 8 आप नहीं कर पाए हैं, उनके पीछे अगर आप अपना पढ़ने का सिलेबस डबल कर देंगे, इट इज नॉट वर्थ इट। जो आप एक्स्ट्रा मेहनत वो डबल रिसोर्स करके उस पे खर्च कर रहे हैं, वो 8 नंबर पाने के लिए, वो आप बहुत कुछ उसमें खो देंगे। आपको यस सर। ऑप्टिमम तैयारी करनी है चारों सब्जेक्ट्स की, और उसमें सफिशिएंट स्कोप आपके पास रहेगा कि आप 1-2 क्वेश्चन गलत भी करें। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे डाले भी जाते हैं जो कोई ना कर पाए, और उनको फिर कोई नहीं कर पाएगा। आप एग्जाम में इसलिए सिलेक्ट नहीं होते, मतलब आप विफल इसलिए नहीं होते एग्जाम में कि आपने वो क्वेश्चन नहीं कर पाए जो कोई नहीं कर पाया। आप एग्जाम में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपसे एक्सपेक्टेड है आप वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, जो करने चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कभी भी आप देखेंगे, कभी एग्जाम को देख के किसी को आपको ऐसा लगा कि भाई ये तो हिल गया, मैं कुछ कर ही नहीं। आप देखेंगे एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने सुने होते हैं, जो आपको पता होता है, लेकिन आप श्योर नहीं होते, 2-3 ऑप्शन में फंस जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो यस इसका सर। मतलब ये नहीं है, मैं बिल्कुल कह रहा कि आप कुछ और देखो ही मत। मैं ये कह रहा हूं अपना जो पढ़ने की पाठन सामग्री है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो लिमिटेड रखें, जिससे आप उसकी बार-बार रिवीजन कर सकें। यस सर। थैंक यू अनुराग सर। राज So, sir, we can take the questions. I mean, question from Q&A section. There are also multiple questions actually. यस प्लीज, So, तो आप मुझे पढ़ के सुना सकते हैं? sure. Okay. So, there is a question from Akash Day. How to plan revision effectively? Gaurav sir's CA student. This is the first question you can see also. या रिवीजन प्लान कैसे करें? रिवीजन देखो, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो रिवीजन मैं कैसे करता हूं, लेकिन रिवीजन का तरीका सबका अलग-अलग होता है। तो रिवीजन का कोई एक कहते हैं ना वन साइज फिट ऑल नहीं है। एक ऐसी टॉपिक नहीं है रिवीजन की सबको पहना दे और सबको साइज फिट आ जाए, नहीं। रिवीजन का तरीका सबका अलग होता है। मेरा जो तरीका मैं बताता हूं क्या है। जब भी मैं कुछ याद करता हूं, तो पहले तो मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ याद करता हूं, ठीक है? चलो मैंने याद कर लिया। उसके बाद मैं उसे थोड़े दिन भूलने देता हूं, थोड़ा 7-8 दिन तक उसके बारे में नहीं सोचूंगा। फिर मैं उसे दोबारा रिवाइज करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि हाँ भाई 70-80% मुझे याद था, लेकिन मैं बाकी भूल गया। फिर मैं उसे दोबारा रिवाइज करता हूँ। मतलब मैं इतनी बार उसे रिवाइज करता हूँ कि वो चीज़ याद हो जाती है। मेरी मेरी मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मेरी कोई मेमोरी एकदम एक फोटोग्राफिक मेमोरी जिसे कहते हैं, मेरी वो मेमोरी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मुझे इतना डेटा याद कैसे रहता है? मुझे याद इसलिए रहता है क्योंकि मैं रिवीजन बहुत ज़्यादा करता हूँ। मुझे लगता है आज के टाइम में अगर सक्सेस का कोई ओटीपी है, लेट्स अज्यूम कि एक जैसे मोबाइल में ओटीपी आता है, तो सक्सेस का ओटीपी अगर कोई है तो वो रिवीजन है, क्योंकि लोग रिवीजन नहीं करते। और रिवीजन के बारे में एक बात आपको और बताता हूँ, जो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा तेज़ बुद्धि वाला होता है, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा होता है, वो रिवीजन उतनी कम करता है। क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो उसे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिवीजन एक ऐसा हथियार है, जिससे एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति एक जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड को बीट कर सकता है। इसे इसके आप कई नाम दे सकते हैं, इसको आप पुनर्अभ्यास कह सकते हैं, इसको आप अभ्यास कह सकते हैं, इसको आप जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी है, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो बोलता है कि मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, अगर दूसरे खिलाड़ी जिम में 2 घंटे लगाते हैं, तो मैं 3 घंटे लगाता हूँ। मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ कि आई आउटडू अदर्स। तो आप अपनी प्रैक्टिस से, रिवीजन से आप अपने से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड वाले को बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। करके देखिए ये काम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anton Cole, he's saying failure gives him horror. How do he overcome that? Failure हाउ टू ओवरकम gives him horror actually. Yeah. How to overcome failure? It's a very big answer actually, but I'll try to be brief. फेलियर का एनालिसिस करिए, ठीक है? फेलियर क्यों हुआ? ये बहुत कम लोग करते हैं। लोग बार-बार फेल होते रहते हैं, बट उसका एनालिसिस नहीं करते। आप एक एग्जाम देकर आए, देखिए आपके क्या क्वेश्चन गलत हुए, क्यों हुए? गलत नहीं होने चाहिए थे, लेकिन क्यों हुए? क्या आपकी मेहनत में कमी थी? क्या ये कुछ ऐसा था जो आपने कभी टच ही नहीं किया था, ऐसा टॉपिक आ गया था? या लैक ऑफ रिविजन की वजह से गलत हुआ है?
राइट? तो आप अपनी कमियां देखिए, कहाँ आपने गलती की, फिर आप उस पे काम करिए और फिर अगले एग्जाम में उस गलती को कम करिए, मिनिमाइज करिए। यही एक गोल्डन फॉर्मूला है जो हमेशा से चला आ रहा है। एक आप चीज सुनते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा नहीं है। जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज में आप परफेक्ट होते हैं। अगर आप मान लीजिए बार बार एग्जाम दे रहे हैं तो मतलब आप, ये जरूरी नहीं है कि आप आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हो रहे हैं, नहीं, इसका मतलब आप एग्जाम देने में परफेक्ट हो रहे हैं। आप एग्जाम देने के चैंपियन बन रहे हैं, एग्जाम को क्लियर करने के नहीं बन रहे। तो एग्जाम देने और एग्जाम क्लियर करने के बीच जो फर्क होता है वो ये होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। आप देखें आपने क्वेश्चन कौन सा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और वहीं पे आपको फोकस करना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं, तो वो अगले एग्जाम में भी उसे नहीं पढ़ेंगे, इस वाले में भी नहीं पढ़ेंगे। फिर वो कहेंगे मैं 4 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होता। 4 साल से आपने जो टॉपिक छोड़ा था वो पढ़ा ही नहीं, तो बार बार आप वही गलतियां कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस उसी चीज में आपको परफेक्ट करेगी जिस चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एग्जाम देने में माहिर हो जाएंगे, एग्जाम क्लियर करने में माहिर नहीं होंगे। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। We are going to the next question. Next question is from Disha. Disha is saying कि I find the recruitment process of SSC or WPSC too slow. I often get tense and fall out of track. Suggest me how to stay focused. I'm say before saying something. I guess you have answered this question, but still, you can take the question. He asked another question also. One more question, sir. How to find out what is the right career for me? I have completed MA and BEd, but as WB TET was not happening, I have been sitting for SSC and WPCS PSC exams. So please. He has two questions. या सो गुड न्यूज फॉर यू इज दैट WPSC का एग्जाम आने वाला है। WPSC का एग्जाम 21 मार्च को है, 21 मार्च को हो रहा है। अभी तो डेट यही है, बाद में एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन स्टेट PCS एग्जाम में किसी में भी 2 से 3 साल का समय लगता है। WBT, अब देखो, अगर एग्जाम अगर नहीं हो रहे हैं, इसमें स्टूडेंट बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। तो जो एग्जाम हो रहे हैं आप उन्हीं में कोशिश करें, राइट? फिर आप ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन देखें। अगर एग्जाम बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं आपके राज्य में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब बैठे रहेंगे और वेट करते रहेंगे कि 15 साल बाद फॉर्म निकलेगा तो मैं 15 साल तक घर में खाली बैठा रहूंगा। फिर आप प्राइवेट की तरफ कोशिश करिए। मेरी एक स्टूडेंट है, उससे एग्जाम नहीं निकला था CDS का, ये बात है आज से 2 साल पहले की, और उसने बहुत जोर लगा लिया, नहीं निकला CDS का एग्जाम। शी वॉज 22 ईयर्स ओल्ड, 22 साल की थी। फिर वो 23 साल की हुई तब भी नहीं निकला, 24 की हुई तब भी नहीं निकला, और CDS में शायद 25 साल एज होती है मैक्सिमम। फिर उसने डिसाइड किया कि अब मैं बस और कोशिश नहीं करूंगी, मैंने अपना बेस्ट दे लिया, जो मुझसे होता था मैंने कर लिया। अब आज वो एयर हॉस्टेस है। शी इज एयर हॉस्टेस इन कतर एयरवेज एंड शी इज अर्निंग 3 लाख रुपीज पर मंथ, जो जो बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट बहुत ग्लोइंग करियर है उसका, बहुत अच्छा करियर है उसका। तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी, ठीक है सरकारी नौकरी की कोशिश करो, आपका आपका मन है तो आप कोशिश करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचो कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा पूरी जिंदगी, ऐसा नहीं है। जो हमारे सामने चीजें हैं, हालात हैं, हमें उनमें थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहिए, थोड़ा-सा हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने थॉट्स में, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं अपनी पूरी जवानी सरकारी नौकरी पे लगा देते हैं। दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट 20 साल के हैं तब से तैयारी शुरू करते हैं, और जब तक वो 30-31 के होते हैं वो तैयारी ही करते रहते हैं। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप एक समय रखिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कि भाई ठीक है, मैं पूरा जोर लगाऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा 3-4 साल, लेकिन नहीं निकलता तो प्राइवेट या दूसरे ऑप्शंस भी मैं खुले रखूँगा। इस मेंटालिटी के साथ आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत ऑप्शंस होंगे। एक मैं और स्टूडेंट का अपनी एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम उन्होंने एक ही बार दिया था बस, व्हेन शी वाज 21। फिर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी जॉइन कर ली, लीगल फर्म में। वो एक राइटर थे, लीगल लीगल राइटिंग होती है, लीगल राइटिंग करती हैं वो। तो उन्होंने स्टार्ट किया, और आज जो है 8-9 साल हो गए हैं उन्हें जॉब करते हुए। उनकी 70-75,000 रुपए सैलरी है। जब स्टार्ट किया था 10,000 रुपए थी, लेकिन इतना अच्छा काम किया कंपनी में, इतना अच्छा वो किया। कई बार हमें ये लगता है कि प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। देखो, जॉब सिक्योरिटी क्या होती है, इसको बहुत गलत समझते हैं लोग। रियल जॉब सिक्योरिटी इज व्हेन यू नो यू कैन वर्क एनीवेयर एल्स। असली जॉब सिक्योरिटी उसे कहते हैं जब आपको ये पता है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर आप में काबिलियत है तो प्राइवेट कंपनी आपको खोने से डरेगी, कंपनी आपको नहीं निकालेगी, बल्कि वो आपको रिटेन करना चाहेगी, आपको कई तरह के ऑफर्स देगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी। मार्केट में ऐसे लोग बहुत हैं जो काम करते हैं, लेकिन असली में जो गुड हैं, असली में स्किल्ड हैं जो, वो बहुत कम है। तो आप कोशिश ये करें कि अगर कोई भी स्किल आपके अंदर है तो आप उसको निहारते जाएं, निहारते जाएं। आपको हर चीज में अच्छा नहीं होना, एक ही चीज में अच्छा होना है, जॉब करने के लिए। सचिन तेंदुलकर भी एक ही चीज में अच्छा है बस, राइट? वो बस क्रिकेट खेलने में अच्छा है। तो एक ही चीज में अच्छा होना है। वो जमाना नहीं है जब आप हर चीज में अच्छे हों, हर चीज, वो मैं उसको नहीं मानता।
मैं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आज मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और मैं उसी में अच्छा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप एक स्किल अच्छी कर लीजिए और उसी में आपको प्राइवेट जॉब भी फिर मिल जाएगी। ये मैं आपको अल्टरनेटिव के तौर पे बता रहा हूँ, विकल्प के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आपके राज्य में फॉर्म बिल्कुल नहीं निकल रहे, तो मैं ये बता रहा हूँ। It's really impressive session for Disha. Then another question is from Sumit Kumar. He is asking for how to improve RC. इसका क्वेश्चन मैं इसका आंसर That's the दे चुका question. हूँ, कॉम्प्रिहेंशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, मैं इसका आंसर दे चुका हूँ। We can take the next question. So one person is Rahul Tungria. He's saying that he is financially little down actually. So how he can fulfill his dream actually instead देखिए, of financial आपके situation. पास आप डाउन हैं, इसका मतलब ये है कि आप सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, आप गैर आशावादी हैं, अभी आशा नहीं है उतनी आपके अंदर, होप नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास सब कुछ है, आप के पास जो आपकी चीज़ें हैं, आप उनको देखिए। आपके पास एक अच्छा स्वस्थ शरीर है, माँ-बाप हैं, आपके पास सब कुछ है। बहुत दो लोग हैं दुनिया में जिनके पास हाथ-पैर नहीं हैं, बहुत लोग हैं जो दिव्यांग हैं, बहुत लोग हैं जिनके पास आँखें नहीं हैं, बहुत लोग हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, जिनको डाउन सिंड्रोम है या बहुत सारी बीमारियाँ हैं। आपके पास सब कुछ तो है, आप अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस मत करिए। हमेशा हमें अपने आप को ऐसा नहीं देखना चाहिए कि बहुत दयनीय स्थिति में हम हैं या हमें दूसरे की मदद चाहिए, हम मतलब दूसरा हमारे लिए कुछ करेगा। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अपने कंधों पे लेनी चाहिए। हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि ठीक है, हम करेंगे, हम करके दिखा सकते हैं। वो एक चमक आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे बिल्कुल एकदम बेसहारा बन के, बिल्कुल एक बेचारे से बन के, तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। अगर आप मैं तो यह तक कहूँगा, अगर आप वास्तव में भी दयनीय स्थिति में हैं, तो भी अपने को ऐसे दिखाइए कि आप राजा हैं। आप अपने आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे जो बहुत गरीब हैं, झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। रोड के साइड में हम चलते हैं तो कितनी सारी झुग्गी-झोपड़ियाँ आती हैं, उनमें भी तो लोग रह रहे हैं। तो वो क्या हमेशा हमेशा उदास और डिप्रेस्ड रहते हैं? आप उनको जाके देखिए, उनके बीच बैठिए, उनके चेहरे की मुस्कान आपको ऐसा लगेगा देख के काश मैं ये होता, कि उसको कोई टेंशन ही नहीं है, वो इतना खुश है। तो पॉज़िटिव रहिए, इतनी आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप कोई ऐसा नहीं है कि जेल में बंद हैं और आप पे रोज़ यातनाएँ हो रही हैं। किस चीज़ की कमी है आपके पास? आपके पास संकल्प है, एक अच्छा बॉडी है, आपके पास दिमाग है, आप कुछ कर सकते हैं जीवन में, तो करिए। हमेशा इस तरह से हमें क्योंकि जब नेगेटिविटी आनी स्टार्ट होती है, तो फिर अगर हम उसको ज़्यादा एंटरटेन करेंगे नेगेटिविटी को तो फिर वो बढ़ती जाती है और फिर हम उसमें फँस जाते हैं। तो नेगेटिविटी जैसे ही आए उसे दूर करिए एकदम, हमेशा पॉज़िटिव रहिए और दूसरों को भी पॉज़िटिव करिए। So another question is from Muhammad Akib. Akib is asking about the preparation of our IAS. So he needs some suggestion from you for the preparation of मैं IAS. अब सो राजेश लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन क्योंकि मेरी 5 बजे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। Sure, अ, sure. You can take the last question. This one. देखिए आईएएस की के लिए क्या बताना है, तो बहुत अपने आप में एक बड़ा सवाल है, मैं कहता हूँ ऐसे मैं कुछ मिनटों में तो नहीं बता सकता। मैं बस आपको यही कहूँगा कि अगर आपका सच में मन है, अगर अंदर से आवाज़ आती है, तो उसके पीछे ज़रूर जाइए, अटेम्प्ट दीजिए वरना आपको बाद में मलाल रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ लक्ष्य इतने बड़े होते हैं कि उनके प्रयास में मिली हुई विफलता भी महान होती है, मैं तो ये कहूँगा। आप आईएएस बनने का सोच रहे हैं, ये अपने आप में आपकी जीत है। राइट? कुछ लोग तो पहले ही हथियार डाल देते हैं, नहीं भाई हमसे नहीं होगा, हम तो शुरू ही यहीं से करेंगे नीचे से। आप सोच रहे हैं अपने आप में ये एक काबिल-ए-तारीफ़ चीज़ है। आप अपना जो इल्म है, आपका जो अपना एक कौशल है उसको निखारते रहिए और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, संभावनाओं से ही चीज़ें चलती हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आप आईएएस की तैयारी शुरू करें, देखें क्या सिलेबस है, कौन-कौन से सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है, कौन से स्ट्रेंथ हैं, उनको लिखिए। जिन्होंने आईएएस निकाला है उनके फ्री इतने आजकल इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे चैनल हैं, हमारा है स्टडी आईक्यू है, एक चैनल है डीकेटी दिल्ली नॉलेज ट्रैक्ट उस पे भी आईएएस के जो लोग बने हैं उनके बहुत अच्छे-अच्छे इंटरव्यूज़ हैं, दृष्टि आईएएस है उस पे बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ हैं, उनको देखिए। अगर आप वास्तव में कनेक्ट कर पाते हैं, तो अपने क लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाइए। So I guess we can uh, close the session as of now, or we can take one last question. आई थिंक That's आई it. बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी 4:58 4:58 Yeah. ऑलरेडी हो गए Anyway, मुझे I guess we are done now actually. Okay, thank you so much, sir, and thank मैं you all. या एक मैं चीज़ कह दूँ, अगर Sure. आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं और आपका सवाल रह गया है, तो मैं राजेश जी को अपना ईमेल दे दूँगा, आपको बता देता हूँ gaurav@studyIQ.com आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसपे आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। So thank you so much all attendees. If you have any questions, you can mail to Gaurav sir. Gaurav address 30. I'm just writing here. हेलो सर। हेलो।
So thank you. Thanks a Yeah. lot for inviting me and having me. And I hope that I can do more sessions for you, the youth platform, in future also. Thank you so That's really great. And visit Study IQ also. And if you have any questions, just mail him. And thank you so much, Wacom India also. And Thank you you. will get the recording session. We'll mail you the recorded version also. Thank you. Thank you, Gaurav. Thank you.